Hare Krishna. Jalu Govind Prabhu, I think Hare Krishna Mataji. Yes. Hari Bol. still showing. So I'll just quickly finish the class, and then because I want today's class to be a little interactive, and in the phone it's not working out, so I'm logging out from the phone and I'd like to get back onto the laptop for some time. Okay, ma'am. Okay. Let's pray to Lord Narasimha that this thing happens and it happens the way we want it, because even after all those hours, it should not land up being if we don't want. So I'm just getting back onto the lap. I just feel so very comfortable. मुझे सब लोग दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके स्पीकर के लिए बहुत अच्छा फीलिंग है जब हम जो है क्या कहते हैं एक सबको देख सकते हैं. So I prefer to see everyone. When I'm नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय. तो कुछ दिनों से हम जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से भगवान की लीला सुनते आ रहे हैं, और आज जो है हम इस शुभ दिन पर जो है हम नरसिम्हा देव और इस लीला खास करके प्रहलाद महाराज के संबंधित जो ये घटना बताई गई है इस विभाग में, और संजोग से हम जो श्रीमद् भागवतम के हर दिन की क्लास में जो पढ़ रहे तीसरे स्कंद में ये जो है 4 कुमार और उनका श्राप किस प्रकार से श्रापित हो गए, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है बताया गया है तीसरे स्कंद में, और 7वें स्कंद में और भी विस्तार रूप से जो है परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो है ये जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर रूप से विस्तारित करके समझा रहे. तो हमारी जो कथा हर दिन चल रही है तीसरे स्कंद उस स्कंद में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जय और विजय जो है से पूछा, और जो चलो क्या ये आगे बताया जा रहा है. ये जय और विजय हम जानते हैं कि वे श्राप के कारण असुर बन गए. आप लोग जानते हैं, हमने सुना है भगवान के निजी पार्षद थे, भगवान के द्वार वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल थे, तो वे श्रापित होकर कौन से रूप धारण उन्होंने किया. यस Ravan and Kumbhakarna. नहीं दे रहे.
Is something wrong with my volume? Can you hear me now? Can you hear me now, Mataji? I'm just testing. Can you hear me? We can hear you, Mataji. Can you hear me? Can you hear me, Mataji? Can hear you, Mataji. Can you all hear her? Yeah, we can. Yes. You all can hear her? Yes, Yes, yes. But can you hear us? Yes. Your voice is cracking, Mother. Can you speak something? So I just does a test. Yeah, Mataji. Asubha Mataji said Ravana and Kumbhakaran. Hare Krishna, Mataji. You have to increase the volume. I think we'll have to call her that I'll put you. I'm not sure she's able to hear me. So are you calling her? Should I call her? I know what the issue is because I had changed that audio setting because of the feedback. This one. Okay. Can I speak now? Hare Bol, Mataji. Hare Krishna. Yes. Now I can hear everybody. Yeah. I actually had done. Can you hear me now, Mataji? Yes. Mataji, that wasn't an issue with you. It was something to do with my from this end, because there was a feedback, because two devices were on, so there was a feedback. So because of the feedback, I had reduced the complete volume to 0. And therefore, I could not hear you. Oh, what a relief. Okay. Thank you very much. Yes, Asubha Mataji, can you tell? So I was saying Ravan and Kumbhakaran were the first. Okay. Okay. So who else? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Okay, Madhu. Shishupal and Dantavakra. Yes, Madhu. Yeah, Shishupal and Dantavakra. So these were the 3. So they had to take 3 births. So they had a choice: 6 births as devotees or 3 births as 3 जन्म जो है असुरों के रूप में या 6 जन्म भक्तों के रूप में. तो उन्होंने कहा कि 6 जन्म बहुत लंबा समय हो जाएगा, भगवान की दूरी हो जाएगी, हम भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर कैसे रह सकते हैं हम. तो इसीलिए हम यही सोच रहे हैं, ये अच्छा होगा कि हम जो है भगवान के साथ शत्रुता का ही जीवन प्राप्त करें. तो इस प्रकार से जो है जय और विजय, उन्होंने 3 जन्म, पहला जन्म उनका था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र. तो आज जो दिन है, भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए, जैसे यही बात जो इस 7वें स्कंद में बताई गई है, जो पहले अध्याय में, कि भगवान जो है समदर्शी है. क्या बताया है समदर्शी के विषय में, भगवान के विषय में? किसी को याद है? किस प्रकार से भगवान बहुत अच्छा है कि पक्षपात नहीं करते भगवान. यस, इक्वल टू ऑल. यस. शिवे किस रूप से ये सिद्ध होता है? ओके, अच्छा. क्योंकि जितना भी बार हम दोहराएंगे, जितना भी बार हम सुनेंगे, तो वो जो है बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी हमारे मन में. यस, वंदना माताजी. माताजी, जब जय विजय और उनकी लड़ाई हो रही थी, तो भगवान ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और वो जय विजय को उन्होंने मतलब अपना ही समझ के एंड न्याय दिया.
समदर्शी कैसे हो गए? तो ठीक है, क्योंकि वो असुरों और उनको एक सा मानते हैं ना, किसी को भी डिग्रेड नहीं करते हैं, सबका इक्वल रूप से होता है। यही बात, यस, वे समदर्शी है, वे असुरों माता जी, can't hear you, your voice is माता जी breaking, आपका you have बीच to बीच में पॉज हो जाता है और आवाज भी चली जाती है। और जो है विमान न में द्वेष्टोस्ति न प्रिया, कोई मुझे, मेरा कोई शत्रु नहीं है और कोई मेरा मित्र भी नहीं है, क्योंकि मैं सबको समान रूप से जो है मैं मानता हूँ। और यही जो है अध्याय, ये जो समदर्शी भगवान जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, और सुखदेव गोस्वामी ने जो है इस बात को जो श्री हो रही थी वहां पे जो है उनको लेके गए, और उन्होंने ये साबित किया कि किस प्रकार से शिशुपाल जैसा कि इतना जो ईर्ष्यालु और भगवान को अपमानित करने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा तो भगवान जो है किसी को अपना शत्रु नहीं माने। लेकिन भगवान को क्या आकर्षित करता है? भगवान को क्या आकर्षित करता है? कैसे भगवान आकर्षित हो जाते हैं? भक्ति। भक्ति माता जी, शिशुपाल की भक्ति थी, स्मरण, शिशुपाल को ये मिलना, somehow he was taking his name. स्मरण नो माता जी, है कि नहीं? बड़े पूर्णतया समर्पित। Who said that? हरि बोल। Who said Samhavadya he was taking his? Who said Samhavadya he was taking his name? Who said that? I don't know. माता जी मैं ही वंदना। ओके, तो इसीलिए जो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो चाहे हम उनको शत्रुता, क्योंकि भगवान ने उनको बोला था कि क्योंकि वे डर गए कि अरे हम शत्रु हो जाएंगे तो और भी दूर हो जाएंगे, पर भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है क्योंकि मैं जो है समदर्शी हूँ, आप शत्रु होते हुए भी आपका स्मरण बनाए रहेगा, आप शत्रुता में भी मुझे याद करोगे और शत्रुता के कारण ही भी आप जो है हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो भगवान समदर्शी है, भगवान जो है किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। अगर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, सुदर्शना माता जी आपने सही बताया कि वो स्मरण रहता है, कितना हमारा भगवान में ऑब्जॉर्प्शन है, चाहे वो शत्रु मान के या चाहे वो कि जब हम अनुकूल रूप से भगवान को मानते हैं तो हम जो है भगवान की भक्ति और भगवान के धाम श्री गोलोक धाम में वापस जा सकते हैं। और जो लोग जो है प्रतिकूल हर समय भगवान का स्मरण, अपनी जो है भक्ति और अपने प्रतिकूल भाव से स्मरण करते हैं तो अगर हम प्रतिकूल भाव से
स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण अगर जैसे कि शिशुपाल का बहुत अच्छा उदाहरण है, कंस का उदाहरण है, रावण का उदाहरण है, वे हर समय भगवान के विषय में सोचते थे। वे भगवान को किस प्रकार, उनके शत्रु के रूप में, और क्योंकि वे ऐसे सोच रहे थे इसीलिए। और श्रीमद् भागवतम के इसी स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज वेन का जो भी उदाहरण देते हैं कि वे भी जो है भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, और शिशुपाल भी ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन शिशुपाल की ईर्ष्या और महाराज वेन की ईर्ष्या में बहुत अंतर था कि शिशुपाल ईर्ष्या में ही भगवान को हर समय सोच रहे थे, लेकिन वेन जो है वे क्या कर रहे थे, वे ईर्ष्या करके भगवान को भूल जाना चाहते थे, वे इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे। तो इसीलिए वे नरक में गए। तो नरक का द्वार इसके लिए खुला है, द्वार उसी के लिए किसी न किसी तरह से भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण हमें करते रहना चाहिए। अगर हमें कितना भी दोष क्यों ना हो, हमारे जीवन में अगर दोष भी हो तो भी हमें किसी भी हालत में जो है भगवान का स्मरण नहीं करना, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक शिक्षण जो है इस जो है कथा से प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे शिक्षण है। ये पहला शिक्षण है कि भगवान समदर्शी है, वे हमारे दोषों को नहीं देखते, वे हमारी दृढ़ता और हमारा जितना एब्जॉर्प्शन, इट इज द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, क्या अपना एब्जॉर्प्शन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए जो है हमेशा अगर हम संग में रहेंगे तो न चाहते हुए भी हमें जो है उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई सुन भी ले और वो सुनने से उनका स्मरण हो जाता है, और वो सुन के ही, जैसे किसी ने कोई बता रहा था, तो ये जो प्रभुपाद जी के साथ ऐसा एक प्रसंग हुआ था, कोई लोग जो है हरे कृष्णा वालों से बहुत जो है ईर्ष्या करते हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे ईर्ष्या करते हैं, वे नहीं चाहते, वे सोचते हैं कि ये लोग जो है वो अच्छे नहीं है, उन लोग में गुण नहीं है, वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो वे गुण जो है ये शारीरिक स्तर कि हम जब हम देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहते हैं तो हम जो है ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब द्वंद जो है हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसी कारण जो है जो भौतिक वादी लोग हैं उनके मन में हमेशा राग और द्वेष रहता है, और इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आश्चर्य नहीं लगना चाहिए हमें कि कभी कभी परिवार के अंदर ही परिवार के सदस्यों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के उदाहरण से कि उनके परिवार मतलब उनके खुद के पिता जो है ना, उनके खुद के पिता जो है वे नहीं चाहते थे कि वे भक्ति नहीं होना चाहिए, समझ रहे
तो हमें उनको उनके साथ ज्यादा जो है क्या करते हैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हमें शांति से अपनी भक्ति करनी चाहिए, जैसे हमने प्रहलाद महाराज के इस जीवन के उदाहरण से सीखा है। यही है एक दूसरा शिक्षण कि कितनी प्रकार से, कितने प्रकारों से ऐसा भी कोई भी प्रकार जो है उनके पिता ने नहीं छोड़ा उनको रोकने के लिए। और वे कितने साल के थे? कितने साल के? 5 साल के थे। हम तो इतने भी नहीं, हम तो ने बहुत जीवन को। Is my this thing getting frozen at times? Yes, Mataji, gets frozen and your voice also fades. I don't know. It's because I told you Mataji, there's a problem with the internet in the temple sometimes. वो भी होगा। But here it is showing full bars. No, there is like I mentioned, there's a background activity going on in this laptop. That's why Dalu had suggested that. Okay, but that I log in from another device. What to do? Should I try again? What to do? The idea was to have an interaction, but even if that's not happening. Mataji, you can continue, but बीच में there is a pause and we just have to guess कि आपने क्या बोला. You're on mute, Mataji. Mataji can't hear you. Mataji was on mute. Yes, Mataji. Haribol, Mataji. I think you just continue, Mataji. Please continue. बीच में होता है ऐसा, but we have no option today. Let me log in then from the phone on. Give it a try. Sorry for this disturbance. I think Hare Krishna, can you hear me now? Is it Yes, better? Mataji. Yes, Mataji, we can hear you. I think, and I'll just do it one way without the interaction part, because that way it will save time also, because I wanted you all to participate. So I think I'll just leave that idea of interaction aside for today. Okay. So one of the lessons, एक जो बात हम सीखते हैं कि हमें जो है जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में जो है बाधा जो है उनके घर के अंदर से उनके पिता के द्वारा हुआ था, है कि नहीं? तो पर हम कभी जो है शायद हमारे परिवार से अगर नहीं हो तो भाद है, हमारे मित्र हैं, हमारा समाज है, समाज में हम जब प्रचार करते हैं तो जो है लोग जो है हमें उनसे हमारा कार्य करने से वो रुकाते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और इसीलिए प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में श्री नरसिम्हा देव की पूजा
करने के लिए उन्होंने हमें आदेश दिया है, क्योंकि अनेक अनेक जो भगवान के ये अवतार है, सबका नहीं, लेकिन नरसिम्हा देव, क्योंकि हमारा जो ये संस्था है, वो जो क्या है, एक प्रचार का संस्था है, और प्रचार करने के समय में भक्तों को बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, और भगवान जो है क्या है, भगवान जो है भक्ति विनाशक, वे जो है भक्ति के जो बीच में जो बाधाएं आती हैं, भक्ति विघ्न रुकावट आती है, वे जो है भक्ति विघ्न विनाशक भगवान श्री नरसिम्हा देव की जय। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि प्रहलाद जो है सबसे जो है बोल्ड क्या बोलते हैं, प्रीचर थे। वे असुरों के स्कूल में या असुरों के पाठशाला में रहते हुए भी वे जो है खतरा उठाकर उनके सहपाठियों को भक्ति का ज्ञान और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य और भगवान के प्रति भक्ति करने का जो ज्ञान जो है, वे असुर की पाठशाला में बैठकर वो जो है दे रहे थे। और तो वे प्रचारक भी हैं सबसे, और वे प्रचार के लिए वे इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपने पिता का भी विरोध किया, जब उन्होंने जो है कहा कि आपको ये विष्णु का पूजा नहीं करना चाहिए, हमारी पूजा करनी चाहिए, और वो विचलित नहीं हुए। हमें इसीलिए भक्ति में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा जो है फुल कन्विक्शन होना जरूरी है। अगर हम फुल कन्विक्शन नहीं है, तो जब हमारे में हमें दृढ़ता नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो जो क्या होता है कि हमारी भक्ति विचलित हो जाती है। और इस कलयुग में तो ये भक्ति को विचलित करने के लिए बहुत सारे साधन जो है उपलब्ध है। तो ये एक बात है जो हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा, प्रहलाद और इस भगवान की कथा, और इसीलिए भगवान जो है खास करके, और भगवान भगवत गीता में भी बताते कि जो भक्त मेरे प्रचार में लगा है, जो मेरा प्रचार करता है, उससे प्रिय और कोई नहीं है। प्रहलाद महाराज ना ही वे एक उत्तम श्रेणी के भक्त थे, वे महाजन थे, लेकिन वे इतना अच्छी तरह से छोटे उम्र में 5 साल की आयु में कितना 5 भक्ति को नहीं, भगवान ऐसे भक्तों के लिए वे बहुत प्रिय है, वैसे भक्त भगवान। और भगवान ऐसे जो है सिद्ध कर देते। जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ, मुझे ये ही एक कन्विक्शन, पूरे जो है कन्विक्शन से, पूरी निष्ठा से हमें ये जानना है कि भगवान जो है सबके शुभ चिंतक है, भगवान जो है
सर्वव्यापक है, भगवान को हम सर्वत्र देख सकते हैं, चाहे वो एक खंबा क्यों ना हो। और प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिम्हा देव को इस खंबे के अंदर देखा और उन्होंने पूरी तरह से जो है ये बताया। ये भगवान, जब उनके पिता ने उनको पूछा तो उनको पूरी निष्ठा थी, पूरी श्रद्धा थी कि भगवान ने उसको सिद्ध कर दिया। अपने भक्त के वचन को साबित करने के लिए वे जो है पहला है कि भगवान द लॉर्ड इज इक्वल टू ऑल, ये एक चीज है। पर वे जो है अपने भक्तों की ओर झुके हुए रहते हैं, कि भक्त जो है उनकी आज्ञाकारी आज्ञा। असुर भी भगवान के को पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन वे जो है भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। और भक्त जो है वे जो है आज्ञाकारी होते हैं। दूसरी बात ये है कि लगाव, अटैचमेंट कैन ब्रिंग एंगर। सेकंड और लव, जो हम देखते हैं कि उनका वैसे तो वो ठीक ठाक था हिरण्यकशिपु, लेकिन वो जानता था कि ये भगवान विष्णु, क्योंकि वो भगवान को समझ नहीं पाए कि वे समदर्शी है, इसीलिए वो सोच रहे कि हाँ वे हमेशा उनका देवताओं का पक्षपात करते हैं, देवताओं को सहायता करते हैं। लेकिन जब उनका भाई हिरण्याक्ष मारा गया, तब जो है क्रोध की कोई सीमा नहीं, वे इतने क्रोधित हो गए। किसके कारण? लगाव, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट ब्रिंग्स एंगर। ये दूसरा सेक्शन जो है इस जो है कथा से हम सीख सकते हैं। जो है उनको आसानी से किया जा सकता है, आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और वे जो है असुर जैसे व्यक्तियों को भी शक्ति प्रदान कर देती, ऐसी शक्ति जो वे जो है लोगों के लिए नहीं, लेकिन वो लोगों को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते। तो ये एक चीज है भगवान और देवता में। भगवान कभी भी अगर हम कुछ विपरीत चीजें मांगते हैं, जो हम जो सोचते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं, एक्चुअली these are all the questions which are supposed to be answered by everybody, but sorry today I couldn't do it, so I'm just giving you all because I know you all know the answer. आप मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब हम जानते हैं। तो जो है मैं जल्दी से अपने आप बता रही हूँ कि भगवान और देवता जो है प्रसन्न हो, इसीलिए लोग जो है ज्यादातर देवताओं को पसंद करते करने के लिए। और फिर वे जो है वे भी विष्णु के विरोध करते कि विष्णु क्या इतना, विष्णु कुछ देते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि वे तो ऐसे ही करते हैं, देखे देवता कितना सब कुछ करते हैं, वे तो सब बस भगवान कृष्ण विष्णु क्या करता है, लेटा है, और भगवान कृष्ण क्या करता है, बांसुरी बजाता है। तो वो ऐसे बोलते। हाँ, और एक पॉइंट आया था जब मैं प्रभुपाद जी ये सब गड़बड़ में, तो प्रभुपाद जी के
जब थे तब बहुत विरोध करते थे, ये हरे कृष्णा वाले ये कर रहे, तो ऐसे ऐसे ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग डिस्टर्ब करते, इतना डिस्टर्ब करते, इतना सब जो है रास्ते में आके हम लोग को किताब देते हैं, रास्ते में गाते हैं, नाचते हैं, डिस्टर्ब करते हैं सोसाइटी को, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बोला कि अच्छा क्या क्या बोले आपने? बोले ये हरे कृष्णा वाले। क्या बोले आपने? हरे कृष्णा वाले। तो प्रभुपाद जी ने बोला चलो अच्छा है आप हरे कृष्णा, वो जो भगवान कृष्ण का तो नाम ले रहे। तो इसी प्रकार से विपरीत अवस्था में भी भगवान का अगर नाम ले ले तो फायदा होता ही है। जैसे कि हम देखते हैं वाल्मीकि के उदाहरण से कि वे राम भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि वे मरा 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 बोलकर उन्होंने भगवान का नाम, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार। तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। और अगर भगवान का नाम लेते हैं किसी भी तरह से, हमें अपना बैंक बैलेंस डिपॉजिट क्रेडिट तुरंत जाता। तो ये रह गया था। तो इस प्रकार से देवता जो है वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो है उनको प्रसन्न मांगों को जल्दी से नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम इन भौतिक चीजों में लग जाएंगे तो हम उनसे दूर हो जाएंगे। वे नहीं देते हैं, पर जो भक्त है उनको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान सब कुछ व्यवस्था करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं इस उदाहरण से, जब जय और विजय ने गलती की तो भगवान ने आकर उस बात को संभाल लिया। भगवान सब कुछ संभाल लेते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दृढ़ संकल्प। हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये इस कथा से ये दूसरा ये सेक्शन है कि दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। और अगर हमारी कुछ मांगे हैं और भगवान नहीं पूर्ण कर रहे, मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है। हमें अपने भक्ति को नहीं छोड़ना है, हमें अपने भक्ति को बनाए रखना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे आता है कि हमने कितना किया, हमें भगवान सुनते ही नहीं है, हम कितना बोलते हुए सुनते नहीं है, ऐसा लगता है जब ऐसी स्थिति आती है जब हम प्रार्थना करते हैं। पर जो भी परिस्थिति है वे जाने, हम जो चाहते थे हमने बताया। जैसे कि बच्चा पीछे लग जाता है माता पिता की, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, पर माता पिता जानते हैं कि उनके लिए ये चीज अच्छी है या नहीं अच्छी। वे अगर अग्नि में हाथ डालने के लिए बार बार कोशिश करे तो माता हमें उनको रुकते, कभी कभी उनको चाटा भी देना ताकि वो समझ जाए। तो इसी प्रकार से हर समय हमारे जीवन में जितना भी परिस्थिति है भगवान हमें संभालते हैं। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो किसकी रक्षा करते हैं? हमारी भक्ति की रक्षा। भक्ति की रक्षा करते हैं। हमारी इस जो है नश्वर शरीर की रक्षा करने के क्या लाभ? हमें क्या रक्षा चाहिए? हमें रक्षा जो अंत में होने वाला ही है। तो इसके लिए हम टाइम वेस्ट कर रहे, जो प्रहलाद महाराज स्वयं अपने सहपाठियों को बता रहे। तो इस प्रकार से देवता और भगवान में अंतर है। देवता हो जो है उनका, वे भी वैसे भी नश्वर है, तो वे भी जो है उनको पता नहीं है, तो वे जो है दे देते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर
उनको ऐसे ऐसे वरदान दिए जिसके कारण उन्होंने बहुत सारा जो है पूरे जगत में उन्होंने, ब्रह्मांड में उन्होंने जो है सब आतंक। तो क्योंकि देवता जो है वे सरल है, वे सीधा, वे जो बोलते हैं कि नहीं, ये जैसे कि माता पिता होते हैं जो बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि वे भी देवता भी भगवान के भक्त ही हैं, तो वो दे देते हैं, चलो खेलने दो, पर उसका परिणाम फिर वो नहीं सोचते। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनको जो है इतनी शक्ति दे दी कि उनको नहीं दुखी नहीं करना, उसको नहीं इतना तपस्या किया, उसको दे दो। पर उसका परिणाम, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो उसका जो है गलत उपयोग कर सकता है। So the one more other lesson is that power in the hands of an unqualified person can lead to chaos, can lead to disaster. This is one other thing that we learn from this. और बहुत ही सुंदर ये बात है कि भगवान जो है हर परिस्थिति के अंदर, अगर कोई भी कैसा भी परिस्थिति में फंसा हुआ, भगवान के पास उपाय है उनको कैसे उससे निकालने के। भगवान के पास उपाय है कि कैसे उनको निकालना। वे जानते हैं, जैसे कि नारद से लेकर देवता जो है उनको भगवान मानने लगे, उनको कुछ नहीं कर सकते। और भगवान ऐसा कार्य करते हैं, ओके आई हैव अ सॉल्यूशन। भगवान के पास सब चीजों के सॉल्यूशन, कुछ भी किसी के पास कितना भी शक्ति होने दो, भगवान के पास उसका उपाय है। हमें कितना भी कोई कष्ट देने के लिए तैयार है, भगवान के पास उपाय है उसको हैंडल करने के लिए, उसका उनके पास उपाय है। और भगवान इसीलिए अंत में देवता जो है भगवान के पास गए, पर भगवान ने उनको क्या कहा? धैर्य रखो। तो ये धैर्य भी रहना जरूरी है जीवन में, कि जब भगवान ने वचन दिया है तो भगवान उनको जरूर निभाएंगे, कुछ न कुछ जो है रास्ता वो निकालेंगे। The Lord can find a solution against all odds without disregarding anyone. तो भगवान को सॉल्यूशन ऐसे ढूंढना है कि ये जो कांटा निकल जाए, और ब्रह्मा जी को भी जो है वे असंतुष्ट न करे। Not to step on Brahma's toes. Without stepping on Brahma's toes, he ensured that he will do something which will keep Brahma's all Brahma's blessings intact, and at the same time kill the thief. तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य करते हैं भगवान कि ब्रह्मा भी अपमानित न हो। भगवान अपनी प्रभुत्व को जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं करते। ब्रह्मा जी का अपमान न हो, ब्रह्मा जी का अनादर न हो, अपने भक्तों का वे अनादर नहीं करते। ब्रह्मा जी उनके भक्त, चाहे उनका भक्त ने गलती क्यों ना की। अभी ब्रह्मा ने बड़ी गलती की उनको सब वरदान देने के बाद, लेकिन भगवान ने उनका जो भी उन्होंने उनको वरदान दिए, भगवान ने उनको तोड़े नहीं। भगवान ने ऐसा रास्ता निकाला कि उनके वरदान भी सही रहे और ये जो है शत्रु का भी नाश। तो
हम सीखते हैं कि भगवान सर्वव्यापक, ऑमनीपोटेंसी, ऑमनीपोटेंस ऑफ द लॉर्ड, ऑमनी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, कि वे सब जगह है। वे भगवान स्वयं अपने अर्च विग्रह के रूप में भगवान वहां पे उपस्थित है। भगवान हर कण कण में है। जिस प्रकार से भगवान अपने अर्च विग्रह में उपस्थित है, उसी प्रकार से वे खंबे में भी सब जगह। तो हम भगवान को सब जगह, ऐसे कोई भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान अपने हृदय में। लेकिन उनको प्रकट करने के लिए हमें प्रहलाद जैसी भक्ति की जरूरत है। जब हमारे पास प्रहलाद जैसी भक्ति होती है तो भगवान प्रकट होंगे हमारे आंखों के सामने। तो दूसरी बात है कि अगेंस्ट ऑल odds कृष्णा इज रेडी टू प्रोटेक्ट, एंड अगेंस्ट ऑल odds वी शुड नॉट फॉरगेट कृष्णा। जिस प्रकार से प्रहलाद जिस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सभी परिस्थितियों में या रास्ता निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से जब भी हम कष्ट में हैं तो हमें कितना भी कष्ट क्यों न हो, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण है प्रहलाद महाराज, पांडव तो है ही। दूसरी चीज जो है प्रहलाद, इस कथा से हम जानते हैं कि हमें इस जीवन का उद्देश्य को जानना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ, कि हमारा उद्देश्य क्या है, जो प्रहलाद महाराज की शिक्षणों से हम जान सकते हैं बहुत सुंदर रूप से। और अगर हमें प्रगति का नहीं, और अगर कठिनाइयां नहीं है तो कैसे हम नहीं आगे बढ़ेंगे। कठिनाई होती तो हमारा, और भक्त के लिए जो है कठिनाई आती है क्योंकि तुरंत जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, राउंड ऑफ प्रेज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करेंगे। लेकिन नहीं, भगवान कठिनाई आती है किसी के जीवन में, भक्त का खास करके, तो भगवान का और गहराई से स्मरण करते, भगवान को और जोर जोर से जो है पुकारते हैं। तो ये दूसरी बात है, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान इस प्रकार से सब कुछ संभालते हैं, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, तो हमें जो है भगवान के चरण कमलों में शरणागत रहते हुए हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। हमें मायूस नहीं हो जाना चाहिए। हमें ये बात जो है भगवान की इस कथा से ये बात आती है कि इफ देयर इज अ विल, देयर इज ऑलवेज अ वे। जैसे हम हनुमान जी की बात बताई थी कथा में कि किस प्रकार हनुमान जी अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार उन्होंने जो है भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने जो है रास्ता निकाला। तो अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, भगवान की चरण कमलों में शरणागत, जैसे कि प्रहलाद महाराज हर बार जब भी इतने बहुत सारे प्रयासों के बाद प्रयास किया गया उनका वध करने के लिए, वे शांत होकर भगवान का नाम जपते रहे। तो दूसरी बात जो है एक्नॉलेज टाइम, समय
समय बहुत ही महत्वपूर्ण, हर चीज के लिए समय, और समय हर चीज के लिए समय जो है इस भौतिक जगत में प्रबल है, और हर चीज के लिए समय। भगवान अगर उन्होंने नेताओं को कहा कि धैर्य, जब समय आए तब हो। तो इसीलिए समय पर हम आज इस कलयुग के इस आधुनिक युग में जो हर एक चीज जो है हमारी उंगलियों पे ऊपर नाचता है या प्राप्त किया जाता है, और वो नहीं होता है क्योंकि अभी आदत भी हो गई है ना, इतना भी लेके हो रहे, इतना भी, अरे और वे ही समय का, और ये ऐसा है कि बहुत ही चीज 5 मिनट्स में मिल जाएगा, 10 मिनट में। अभी तो बॉम्बे में तो इतना सब जेप्टो है, ये है, वो है, 10 मिनट डिलीवरी है, और अगर नहीं हुआ तो समय तो प्रबल है, समय बहुत बलवान है। हम कितना भी उसको कंट्रोल करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसीलिए धैर्य, और आज के जीवन में हमने धैर्य को खो बैठा है हम सब, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जा रहा है, और नहीं मिलता है तुरंत ब्लास्ट, क्रोध, उग्र रूप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस कथा से हम जानते हैं, और प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं भी की है, और किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए ये भी जो है इस जो है लीला से हमने शिक्षण पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी हम पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हो सका, क्योंकि